Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 in India. और न्यू दिल्ली से खबर है कि इंडिया ने अपना मैच अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत ही आराम से और आसानी से जीत लिया है. एंड व्हाट अ विक्ट्री. कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. Afghanistan, well, they have a lot to learn from this game. इसके ऊपर बात करेंगे. With me in the pavilion, I've got the four greats of Pakistani cricket, four former captains, four really good cricketing minds. I've got the young, dynamic and dropping pearls of wisdom, Shoaib Malik. Shoaib, welcome. Good evening and Assalamu alaikum everyone. With that, I've got Mr. Dependable, the most successful test captain in Pakistan's test cricket history, Mr. Misbah. Misbah, welcome back. Assalamu alaikum ji. Thank you. Also, the man of crisis and the man with a lot of spices. I've got the dynamic wicketkeeper, excellent runner between the wickets, Mr. Moin Khan. Moin, thank you for being here again. Yes, sir. Thank Good you. to have you back. Assalamu alaikum everyone. And with that, the Sultan of Swing, the undisputed king of all all-rounders, I've got the cricket royalty himself, Mr. Wasim Akram. Wasim, welcome back. Thank you very much and Assalamu alaikum. Good evening everyone. आइए सबसे पहले जरा मैच समरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं. बड़ी ही इंटरेस्टिंग मैच समरी है. बिल्कुल जिस तरह के हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया था तकरीबन वैसा ही सब कुछ हुआ है. अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट. आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के लिए गए. 272 रन के इन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पे अपने पूरे 50 ओवर खेले, विच इज़ वेरी वेरी गुड. हशमत देर विद दैट वेरी नाइस नॉक ऑफ 80. अजमत लुक रियली गुड. उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कुछ शॉट्स खेली and scored that innings 62. 22 इब्राहिम की तरफ से गुरबाज 21. Now Bumrah picking up 4 wickets for 39 in 10. Hardik Pandya also joining the party, 2 for 43, and Thakur there 1 for 31. Kuldeep went wicketless in this game, if I'm not mistaken. We'll just look at Kuldeep Yadav. No, he did pick up 1 wicket, not there on that scorecard. जवाब में आप लोगों ने देखा कि रोहित शर्मा शो था. 131, 155 स्ट्राइक रेट के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की. And then of course Virat Kohli also chipping in with that half century. Afghanistan bowling looked very ordinary, Wasim. I think India outplayed them. Yep. It was a great pitch to bat on. Belter जिसे कहते हैं हम. And it became better batting second. वो मिसबा जैसे कह रहा था ब्रेक में कि बॉल टर्न हुई है, सिर्फ बल्ले के मिडल पे टर्न हुई है. I mean the way Indians top order took the game away from Afghanistan in first 10 overs, it was incredible. And way Rohit Sharma played, man, and I picked him up to yes, be the player yes, of he was the your player to watch out for. Rohit, बल्कि मैं आप लोगों को बताता चलूं, just to remind you all, जब हम वो सेगमेंट अपना करते हैं शुरू में प्री मैच में, तो उसमें जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर सेगमेंट था उसमें मिसबाह उल हक ने बुमराह को चूज़ किया था. 4 विकेट उन्होंने हासिल की. और वसीम अकरम ने रोहित को चूज़ किया था. आउटस्टैंडिंग. सो ये साइड जो है बड़ी भारी रही. ईशान किशन was मोइन खान्स चॉइस, and then Virat Kohli also picking up a half century there by Shoaib Malik. So more and less all of you got it very right. इसे कहते हैं control kind of win, okay? It was an inexperienced side, but the way they batted, कोई चांस नहीं दिया. प्रॉपर शॉटिंग खेली है. रोहित शर्मा तो looked so beautiful, so easy. It appears he's got lot more time than the other batters. I mean कोहली ने 50 किया, बहुत अच्छा लगा, कंट्रोल किया, बट ये तो it was a different beast altogether. जी रोहित की शॉट्स देखे उन्होंने, सब जगह शॉट्स खेले. और आज जब वो टॉस पे भी आए थे तो यू कुड सी लाइक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ऑन हिज फेस. और एक चीज़ और भी हो जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप पहला मैच बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं और वो जीतते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, तो वो एक कॉन्फिडेंस आप लेके जो है अगली टीम्स के साथ मैचेस खेलने जाते हैं. और जो आज हम लोगों ने देखा, और आई गेस हेड्स ऑफ टू हिज इनिंग्स. ये बैटिंग देखने के बाद मुझे लगता है कि जो अब टीमें आगे खेलना है, अब पाकिस्तान ने अगला मैच खेलना है अंडर प्रेशर, डेफिनेटली जो बॉलिंग जो भी खेलेगी, भाई बॉल करना कहाँ पे है. अगर आप ऑफ साइड तो ऑफ स्टम्प करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ चिक्का मार देते हैं. तो the way he is batting, I mean it's the margin of error. बल्कि margin of error छोड़ें, margin के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम बचना है. कैसे है, बचना कैसे है. अमेजिंग रिकॉर्ड भी इन्होंने आज बनाया है इंडिया के लिए. लाइक 7 सेंचुरियां करने वाले पहले बैट्समैन हो गए इंडिया के. इससे पहले सचिन के पास रिकॉर्ड था.
फ्लॉलेस बैटिंग थी आज 100%। आज तो बिल्कुल flawless batting थी। बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग थी। और जैसे अभी मिसबा ने कहा, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को थोड़ा सा, अगर हम डिस्कस करें इनकी बैटिंग, शुरू में ही आउट कर सकते हैं। अगर शाहीन शाह का इनको अंदर आता हुआ यॉर्कर टाइमली यानी फर्स्ट इनिशियल जी, ओवर्स के अंदर जी। पड़ जाए, या एक ऐसा बाउंसर जो थोड़ा सा हाइट पे ज़्यादा हो इनकी, लाइक सर के ऊपर हो, तभी आप इनको पकड़ सकते। अदरवाइज अगर लेंथ बॉलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान नहीं, होगा उसके पाकिस्तान जैसे के लिए। आपने बताया उसका रिकॉर्ड के 7 सेंचुरी की उसने, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट हो गई है उसकी। मगर कंपैरिजन किया जाए अगर उसको ग्रेट सचिन तेंदुलकर जिसकी 6 हैं, उसकी 44 इनिंग्स में है, और रोहित शर्मा की ओनली 19 इनिंग्स 700 एंड नंबर 3 इज संगकारा 500 इन 35 innings, and then we have Ricky Ponting 542 They're all innings. greats of the game। और उनकी नंबर ऑफ half से इनिंग्स भी ज्यादा। देखें, Yeah. कन्वर्जन रेट इसका देखें 19 में 100। दैट्स और अभी ऐसा लगता है कि 1-2 वर्ल्ड कप और जी जी, खेल सकते हैं इंडिया के he's not लिए। stopping now. Rohit Sharma is just probably going to go Yeah. for another couple of क्रेडिट World उनको भी देना चाहिए, क्योंकि उनके एरा में एक तो टोटल इतना लंबा नहीं होता था जी। Yeah. और दूसरा रूल्स भी डिफरेंट थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बट आप सचिन वगैरह की बात करें जी, the other, you know, no, not taking away from any of them. Absolutely, I think that would be gravely wrong on anybody's part Yes. कि हम उसको वो करें. I think you can't compare. I think Sachin, even on this table, when I look around, I see, you know, different eras of cricket, totally different challenges that each one of you had. You know, DRS होता अगर वसीम भाई के टाइम पे, तो I think we would पता नहीं कितनी और विकेटें होती। At least मेरी और वकार की कम से कम 300 400 विकेट। There you go. So, अब you know, देखते हैं DRS आज नबी जैसे आउट हुआ है, फॉर नबी के जो भी उनका कप्तान था बुमराह ने आउट किया लेग बिफोर उसको, बट नेकेड आई से जब दिखाया उन्होंने तेज फास्ट उसमें रिप्ले में नहीं, इट अपीयर्ड इट गोइंग डाउन लेग, बट इट वाज अंपायर्स कॉल एंड ही वाज हिटिंग क्लिपिंग द स्टंप एंड दैट्स आउट। सो हमारे दौर में तो ये था नहीं, हमारे दौर में फ्रंट फुट पे आपको वो खेलते थे बगैर पैड के भी, बल्ला भी रख के साइड पे, तो नॉट आउट था कि जी क्रीज से 3 मीटर आगे है तो बॉल वहां तक पहुंचते पहुंचते कैन गो एनीवेयर। yeah, that दूसरी एक and और चीज़ इन apparently- दोनों के कैरियर में पाकिस्तानी विकेट्स पे या एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली। अगर नहीं। यही क्रिकेट इन्होंने दूसरे कंट्रीज में खेली होती जहाँ पे सपोर्ट मिलती बॉलर, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल डबल विकेट technology, होती। I'm all for technology. Like it's part and parcel of this 21st century. But technology has to be, in my book, 100%. accurate. Yeah, Accurate. If it's technology, then it has It's to not be कि absolutely accurate. 97.50 वो है, क्या उसको कहते हैं, accurate. वसीम भाई हमेशा जो है ना, मेरे को मेरा बहुत ज़्यादा होता था, इनसे बात भी होती थी, हम दुबई में खेलते थे तो अक्सर आईसीसी जो इनका हेडक्वार्टर वहाँ जाके इनसे स्पेशली ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये जो अब अंपायर्स कॉल है ये नहीं होनी चाहिए। Yes, It either should it's be like- hitting the stump, so I It's suppose either out or it's not out. make it simple. अब एक अंपायर्स कॉल है, अगर सिर्फ क्लिप हो रहा है और वो आप आउट दे रहे हैं, तो हाउ कैन द प्लेयर्स बॉलर है या वो कैसे उसको जज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि यार ये पूरा हिट हो रहा होगा, ये क्लिप हो रहा होगा। तो इन एनी केस दोनों को सेम एडवांटेज मिलना चाहिए। इफ इट्स नॉट आउट इट शुड स्टे नॉट out. आउट, Simple. वेदर एम्पायर हैज गिवन इट आउट आर नॉट आउट। And this is वाइस वर्सा a कर दो। prime example. टेक्नोलॉजी भी डिबेटेबल As we say it in our part of the world, adda tittar te adda bater. बिल्कुल। You're I neither agree. here, neither there. I know. I completely agree there. But having said that, again, not to take away from Rohit Sharma's brilliance Yes. with the bat, and again he showed this today. And I think India must be a very happy camp today because Shubman Gill जो है वो बीमार है और अगला मैच पाकिस्तान के साथ है. For Rohit to get those runs on the board and get that, you know. Yeah, but even Iyer is looking also very good. Yeah. I mean, they had a go. I mean, Afghanistan, we all know, have one of the best spin attack in world cricket. Right. You know, all 3 spinners. Nabi is very experienced. Rashid, we know how good he is, and Mujib as well. But the way they played today. जी बिल्कुल बिल्कुल. स्पिनर्स उनके अच्छे जरूर हैं, Yeah. लेकिन जहाँ बॉल थोड़ा सा घूमे, turn over. वरना राशिद इज द ओनली स्पिनर जो आज हम लोगों ने Rashid देखा। की भी we मुजीब discussed in the morning. जी, Shibi. मुजीब फिंगर स्पिनर है, जहाँ पे बॉल नहीं घूम रहा, हाँ, थोड़ा वो सा भी, सीधा ही तो आप आएगा। मीडियम पेसर को खेल रहे हैं, जब- और वो आज हमने देखा वो। Yeah. और राशिद ही एक ऐसे बॉलर है जहाँ उनको कैसी भी पिच पे वो खेल रहे हो वो जरूर तंग करते हैं, लेकिन आज वो आए लास्ट में बॉलिंग करने हैं जब मैच But we were मैच वाज discussing ऑलमोस्ट ओवर। in the morning about Rashid's stats in ODI cricket. They're not that great. जी हाँ बिल्कुल. वैसे Very even good.
पिच भी मेरा ख्याल है जो ग्रास लेयर था उसकी वजह से स्किड ही कर रहा था, इस वजह से टर्न नहीं हुआ ज़्यादा बॉल। अदरवाइज जैसे शोएब मलिक कह रहा है मुश्किल बॉलर, जहाँ ज़रा सा भी टर्न मिलेगा बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है ये जज करना बिल्कुल। कौन सा टर्न होगा और कौन सा नहीं। इंडिया के लिए अच्छी खबर ये भी है कि ईशान किशन जिस तरह आप बात कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स जो है ना आज के बड़ा लिए सुकून से खेला है बहुत वो। सुकून से खेला। एक टाइम पे वो 10 रन पे थे और रोहित की हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी थी। Yeah, I was He was watching. taking his time. But that's sometimes that's what you do as a batter. If one is aggressor, Yeah. other one can just hang back a bit, just give him the strike because उसका दिन है, and that's how you evolve as a batter. यूजली क्या होता है कि जब दूसरी साइड से शॉट्स लग रहे हों Yeah. तो आप ना नॉन स्ट्राइकर एंड पे कहते हो यार मैं भी कोई ऐसी हरकत करूं, वहाँ से बड़े अच्छे शॉट्स लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया क्योंकि लास्ट वाले मैच में वो 0 पे आउट हुए थे। जो उनके शॉट्स थे वो उन्हीं पे रहे, जहाँ पे उनको थोड़ा शॉर्ट बॉल मिला उन्होंने ये मिड विकेट खेला जहाँ पे पीछे फील्डर नहीं था, फिर उनको जहाँ आगे मिला ये उनका पेट शॉट है, ये भी फील्डर ऊपर था मिड ऑन वाला, तो वो बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली और गेन किया कॉन्फिडेंस जो ज़रूरत थी। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, शुभमन गिल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन आप देखें उनके ड्रेसिंग रूम में या उनका थिंक टैंक, दे आर नॉट डिस्कसिंग हिम। ये Yeah. बड़ा जी, इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ है। जबरदस्त बात की आपने। This Yeah, is big very question as is, for instance, if he gets fit, अल्लाह करे वो fit हो, हम तो चाहते हैं, young player है, very exciting player to watch. So will they consider him to be playing 11 or will they go with this? That'll be a good problem to have. Yeah. But there will be a kind of I'm sure if two schools of thoughts he will there. be fit enough to play the game, he will play. Yeah, Okay. but you can't keep him No, out of the of game. course. I think Fair enough. you just can't do एशिया that. कप में दोनों खेले थे, ईशान किशन को भी खिलाया था इन्होंने, शुभमन गिल या को भी मिडिल ऑर्डर खिलाया था। में केएल राहुल और जब he was ईशान fit, yes. मिडिल ऑर्डर में खेले। But also, Mr. Virat Kohli, you just can't keep him out of the Indian batting scorecard because he will always place a score right up there. आज फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्निप सेंचुरी जो है वो गाड़ी और वो भी बड़े सुकून से टाइमिंग के साथ सारी शॉट्स उन्होंने जो है वो खेली है। मिसबा बिल्कुल पता भी नहीं चलने दिया और 55 रन ऑलमोस्ट रन अ बॉल एंड लुक एट हिज बैटिंग। आई मीन लगता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि वही फ्लो चल रहा है पिछले मैच से, ऐसे लग रहा है नट आउट ही आ रहे हैं और इन फॉर्म है, सेटल आ रहे हैं बाहर से। उनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी है, लास्ट मैच भी बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन एक और चीज़ है, ये उनका होम ग्राउंड है दिल्ली, तो इस वजह से वो ऐसे खेल रहे थे आ जाओ आओ यार जरा प्रैक्टिस करा दो, मैं भी 2-4 चौके मार लूं अपने जरा। नाम के पवेलियन से आ रहे हैं वो और आगे। Well, you know what? Let's take a look at the points table. Right, जनाब, ये रहा points table आप लोगों के सामने इस वक्त। न्यूजीलैंड right on top now. India going to the second position, pushing Pakistan down to the third position. उसकी वजह है कि net run rate जो है इंडिया का वो बहुत बेहतर हो गया है इस मैच की वजह से, जिस स्पीड में उन्होंने ये अपना टोटल चेस किया है। So now that's your top 4 right now. अब इसमें सवाई साउथ अफ्रीका के बाकी जो टीमें हैं सब ने अपने 2-2 मैचेस खेल लिए, but then you can see how the table is shaping up. South Africa, England, Bangladesh, Australia way down there, Sri Lanka, Netherlands, and then you have Afghanistan. So ये सूरत हाल है points table की। Points table brought to you by Pepsi. जी शोएब, you wanted to say something? हम लोग जो नेट रन रेट देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट 4 में जो टीम्स जाएंगी, देखिएगा 1 से 2 टीम्स जो हैं वो नेट रन रेट की वजह से स्ट्रगल ज़रूर करेंगी, तो जहाँ जिस टीम को भी मौका मिले कि वो जल्दी मैच फिनिश कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। Right, and with that we're going to take a break on the Pavilion, but when we come back we'll talk about the Afghanistan batting lineup and we'll talk more about the next big clashes that are coming up in this World Cup. Don't go away, keep watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड दी एयरवाइज ऐप। हम लोग बात कर रहे थे अब से कुछ लम्हे पहले न्यू दिल्ली में इंडिया ने अपना मैच जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी हम ब्रेक से पहले इंडियन बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे, व्हिच लुक्स एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर एंड अनस्टॉपेबल एंड दैट हैज अ लॉट ऑफ अस वरीड हियर। बट लेट्स टॉक अबाउट द अफगानिस्तान बैटिंग टुडे। कुछ अच्छे साइंस भी नजर आए, क्योंकि जो हमने उनकी डिबैकल देखी जो पिछले मैच में हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद टुडे काफ़ी एप्लीकेशन नजर आई है कि जैसे बैट्समैन अप्लाई कर रहे हैं, एक प्लान के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक एक पार्टनरशिप तो लगी है वहाँ पे ज़रूर, लेकिन क्योंकि वो प्रेशर इतना ज़्यादा था, ऊपर से 63 पे 3 आउट हुए थे, तो थोड़ी ग्रेजुअली बिल्डअप करने की कोशिश की है, लेकिन एक ही सिर्फ पार्टनरशिप लग सकती है। तो जैसे हमने प्रीवियसली अपने प्रोग्राम में बोला था कि यही प्रॉब्लम एक इनको आ रही है और ये पहले बैटिंग करके ही निकल सकती थी। आई थिंक आज थोड़ा सा उन्होंने अपना जो
प्लेइंग स्टाइल था बैटिंग में, वो थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश की, उसी में थोड़े से रन भी मिले, बारी लेने की कोशिश, बारी ऑफ कोर्स बारी लेने की कोशिश की। अदरवाइज अगर वो उसी अपने जो उनका फ्लेयर है खेलने का उसी स्टाइल पे जाते तो मेरा ख्याल है जो ये रन बने इसमें से भी 40-50 रन कम हो जाते थे। जी शोएब आपके गुरबाज ने, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 एंड समथिंग रन्स की इनिंग्स खेली थी, उसमें उन्होंने 300 प्लस किए थे। इसी तरह आज जो है जो उनके कैप्टन है हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरजई, ये ऑलराउंडर हैं जो उमरजई हैं, इन्होंने रन्स बनाया, एक ने 80 बनाया, एक ने 62 बनाया, तो इन्होंने 272 किया। तो ये जो मसला है ना, ये बैटिंग इनमें आ रहा है, या ऊपर से जब गुरबाज 100 करता है तो ये 300 प्लस करते हैं, राइट, या ये दो लोग करें रन्स इनमें तो ये चले जाते हैं 270 प्लस। लेकिन आज का पिच जो था वो 270 प्लस वाला नहीं था। आज एटलीस्ट जिनके अगेंस्ट आप खेल रहे थे और जिस तरह का पिच है दिल्ली का, उसमें आपको मिनिमम 350 रन्स चाहिए कि आप उसको डिफेंड कर सके। Right. तो ये हमेशा से इनका जो है, चाहे वो थोड़ी टफ कंडीशंस में खेले तो एक बंदा रन बनाता है, थोड़ी अच्छी कंडीशंस में खेले जो बैटिंग फ्रेंडली है तो उसमें ये 270 बना लेते हैं। लेकिन जब अच्छे उस पे जाते हैं तो इनके स्पिनर जो हैं सिवाय राशिद के वो भी थोड़े से ऑर्डिनरी हो जाते हैं, जैसे आज बॉल स्पिन नहीं हुआ, तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली 50 ओवर क्रिकेट में अगर ये फिक्स करेंगे तो ये कम्पीट कर सकते हैं अगेंस्ट गुड टीम्स। अजमतुल्लाह की बात कर लेते हैं। अभी आपने बात की, अजमतुल्लाह ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जो शोएब आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव को अगर आप उतर के खेलें तो, और ये आज कुलदीप यादव को 3 छक्के लगे और इन्हीं से लगे सारे के सारे, एंड ही वाज यूजिंग हिज फीट रियली वेल। माना कि बैटिंग पिच था, माना कि बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, बट वो एक बहुत सारे बैट्समैनों ने तो कुलदीप का वो भी बनाया हुआ ना कि एक उसका नो डाउट इज अ वेरी गुड बॉलर, बट या यू राइट, उन्होंने जो शोएब ने सुबह टेक्निक बताई थी कि ऐसे स्पिनर को कैसे खेलना चाहिए, अभी खड़े खड़े या निकल के सीधा मारो उसको, और ये खड़े खड़े उसने मारी पहले, उसने अभी दूसरा देखे ना सीधा जा रहा है, मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ जा रहा है, क्योंकि पिच ऐसा ही आपको अलाउ करता है, बॉल स्पिन नहीं हो रहा, स्किड होके, जैसे मिसबा भाई ने कहा था बैट की तरफ जाके स्पिन होता है, बल्ले पे लग के स्पिन होता They है। did well though, they were 63 for 3 और फिर इनकी 121 रन की पार्टनरशिप हुई और 184 पे तीसरी विकेट गिरी इनकी, चौथी विकेट गिरी। सो आई मीन आई सपोज नबी को थोड़ा पिच इन करना चाहिए था, 19 किया सिर्फ 27 गेंदों पे, तो वो जो पार्टनरशिप लगी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया कि 270 wasn't par score on this pitch like शोएब just said के 350 would have been at least थोड़ी फाइट दे सकते थे। एक्चुअली उनको वसीम भाई ऐसी पिच पे जहाँ हाई स्कोरिंग मैच है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके रहमानुल्लाह गुरबाज, पिच भी बहुत ज़बरदस्त थी, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं अगर वो ऊपर से रन करते हैं, और वो आज बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी थे, नहीं कर सके। द वे ही नॉर्मली बैट्स और प्रैक्टिस मैच में जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट ये दोनों इनके ओपनर खेले हैं जी, वो बिल्कुल डिमोलिश करते हैं जैसी मर्जी बॉलिंग लाइनअप हो, बट आज स्टार्ट मिला उसके बाद उसको बड़ा स्कोर नहीं कर सके, अदरवाइज दैट कुड हैव बीन अ वेरी गुड स्टार्ट एंड वेरी गुड सेटअप बेसिकली जो आप कहते हैं ना। और फिर जो दूसरा इनका प्रॉब्लम आ रहा है कि नबी नजीबुल्लाह ज़ादरा, ये आपका पावर हाउस नीचे है कि अच्छा ठीक है प्लेटफॉर्म अगर हमें मिला है तो उसको हम नीचे से थोड़ा सा बड़ा स्कोर करके देंगे, दे आर नॉट स्कोरिंग रन। अब 8 बॉलें खेल के 2, 27 बॉलें खेल के 19, तो ऐसी पिच पे अगर इसी को कन्वर्ट करते वो और आपका स्ट्राइक रेट को 100 प्लस का भी होता, 120, 25, 30 का होता, तो दे कुड हैव जस्ट रीच 300, वो भी कम होता। बट आई थिंक कि ये वो लिंक मिसिंग है, पूरी बैटिंग लाइन में एक चलता है तो बीच वाले नहीं चलते, बीच वाले अगर करते हैं ऊपर से नहीं होता, फिर नीचे वाले नहीं कंट्रीब्यूट करते, सब जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे इस चीज़ को तो उस वक्त तक कंप्लीट परफॉर्मेंस 50 और वन डे क्रिकेट में, T20 में तो चल जाती हैं छोटी छोटी पार्टनरशिप, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, वाइट बॉल, आई मीन T20 एंड वन डे क्रिकेट। लेकिन जिस तरह की आज इंडिया ने बैटिंग की है, मैं कहता हूँ 350 के 450 रन भी अगर कर देते तो आज तो इंडिया नॉन अनस्टॉपेबल लग रहा था। फखर यही फ़र्क है कि आप जो एक्सपीरियंस साइड है या जो बड़ी टीम है वो 1-2 ओवर के बाद अंदाज़ा कर लेते हैं कि भाई पिच क्या कह रहा है, हमने कैसा टारगेट यहाँ पे सेट करना है। अब ये नहीं कि ऐसी पिच पे भी आप सोच रहे हैं कि 250 या 270 करेंगे हम इंडिया के अगेंस्ट, तो दैट इज़ इनफ।
ये होपिंग अगेंस्ट होप है कि हम शायद जीत जाए, नहीं, पिच ऐसी नज़र आ रही थी, यू शुड हैव आइदर गॉन फॉर के यार 350 करना है, इससे नीचे काम नहीं चलेगा यहाँ पे, जैसे ठीक है T20 जी, में होता है बिल्कुल ऐसे ही है। एक टाइम था 130 टफ पिच पे जो है आप डिफेंड कर लेते थे, अब नहीं, अब जैसा मर्जी पिच है, बहुत भी अगर टफ है तो आपका एटलीस्ट 150 प्लस रन जो है वो होने चाहिए डिफेंड करने के लिए। अब ओडीआई क्रिकेट भी वही चली गई है। ऐसे ही है, बट बिल्कुल। एक चीज़ पॉजिटिव जो है वो जी। कम से कम जो मिडिल ओवर्स हैं, लाइक फ्रॉम 11 टू 40 ओवर्स 5.4 के एवरेज से खेला है और 3 सिर्फ विकेटें गिरी हैं। तो ये जो मिडिल ओवर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनका जो मैं बात करता हूँ इनकी नेचुरल जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रोक मेकिंग है, तो इन्होंने थोड़ा सा उसको अब चेंज करने की कोशिश की है ओडीआई क्रिकेट में। T20 में तो बिल्कुल वही फ्लेयर चाहिए होता है हमें, तो ये एक शुरुआत अच्छी है जी। इनके लिए, कम से कम आने वाले वक्त में ये बेहतर हो सकते हैं। They've started applying themselves. बिल्कुल, वो एप्लीकेशन वाली जो बात हम कर रहे थे, आपने एवरेज की बात की, रन रेट स्कोरिंग की बात की, ये एक हम स्टैट आपके साथ शेयर करते हैं कि वर्ल्ड कप्स के अंदर जो एवरेज रन रेट है वो कैसा रहा है ओवर द ईयर्स, जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं। ये आप देखिए 2007 में 51 मैचेस का जो रन रेट था वो 4.95 था, और अगर आप देखें गौर से तो ये वसीम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मिसबा, वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स जस्ट बीन गोइंग अप एंड अप every preceding World Cup। ये 2023 क्या है, ये सिर्फ 9 मैचेस में जी, अभी ये और ये improve करेगा। अभी तो और 350 400। That's how the ODI cricket and cricket in general has evolved। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि आप रोहित शर्मा को सचिन तेंदुलकर से नहीं compete उनको मिला सकते क्योंकि वो डिफरेंट क्रिकेट थी। आई थिंक दैट स्टैट अलोन मिसबा शोज द ट्रेजेक्टरी ऑफ हाउ ODI cricket has gone from what it was to what it is right now, how the game has changed, how bowlers are more under pressure and batsmen get more and more things in their corner। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रूल्स हैं, फिर पावर प्ले के रूल्स चेंज हुए, फिर बॉलें कहीं 2 लगी, कहीं 1 बॉल लगी, फिर बीच में ये होता था कि 30 कुछ 34 ओवर बाद गेंद चेंज करना है सेकंड वाटर ब्रेक पे, तो मैंडेटरी था जी। ये सारी चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी आपको जो अभी जो लॉ है आपको देखें, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत बड़ा पावर प्ले है। 10 ओवर से ले के जो 40 ओवर एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर है, अच्छे बैट्समैन उसको कैश करते हैं कि आपको रिस्क भी नहीं लेना, आप देयर इज़ अ बाउंड्री थ्रू आउट दोज 30 ओवर्स कि आप अगर कहीं पे भी आप सोचा होगा कि आप मिड विकेट ऊपर होगी, फास्ट बॉलर पे सामने के दोनों फील्डर ऊपर होंगे, तो आप एक आधा चांस आराम से ले सकते हैं ओवर में अगर बॉलर नहीं भी बॉल दे रहा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक नाउ 350 इज अ नॉर्मल स्कोर। आप थोड़ी सी भी अच्छी पिच होगी तो ये नॉर्मल रन हैं जो कोई भी टीम करेगी। Yeah, and I think England has a lot to contribute to that change of how they've gone up. Shoaib? बिल्कुल, आई गेस अगर हम इंग्लैंड से पहले बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, Very true. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी, दे यूज्ड टू सेट द बेंचमार्क कि ऐसे क्रिकेट खेली जाएगी जो कि बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट थी। और आई गेस 2015 में जब इयन मॉर्गन बने हैं कैप्टन, तो उन्होंने इसी बात में इन्फोसाइज किया था जो ऑस्ट्रेलिया करता रहा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के पास 5 वर्ल्ड कप्स हैं। वो यही वजह है कि वो दूसरों से हमेशा से 2 कदम आगे रहते थे, जो इंग्लैंड ने किया 2015 में, और वो 2019 का जो है वो वर्ल्ड कप जीते। Right, with that we're going to take a break right here on the Pavilion, but when we come back there's more on the other side. Don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app and the news out of New Delhi is India winning their game against Afghanistan। और अभी हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की बैटिंग की, जरा इंडिया की बॉलिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स बुमराह लुकिंग स्पेक्टेकुलर, 3.9 सिफर की इकॉनमी के साथ उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, आज 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं एंड दैट वाज जस्ट वंडरफुल। बट वसीम, व्हाट हैपेंड टू मोहम्मद सिराज? ही गॉट टेकन फॉर अ लॉट ऑफ रन्स टुडे, 9 over 76 at 8.44। It can happen on such a good track. One off day, it's okay. But he's a good bowler. We've seen Asia Cup में उसने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है, फाइनल में 5 या 6 आउट किए थे उसने within span of 4-5 overs। But today it was a good pitch and they played well. So credit to the batters the way they played. Some good shots along the ground and both sides of the square.
शुरू में लेकिन गुरबाज ने भी इसको वसीम, आपने कहा कि ऑन अ पिच लाइक दिस कि किसी को भी हो थोड़ा सकता है, फुल किया bowling मैं वही इसने कह रहा हूँ कि इनकी शायद लेंथ का इशू नहीं, बिकॉज वी हैड बुमराह ऑन द सेम पिच बॉलिंग टोटली डिफरेंट, बुमराह इज अ डिफरेंट वो बॉलर ऑल टुगेदर, बट देन हार्दिक पांड्या हु इज एन ऑलराउंडर, उन्होंने भी बहुत इससे उनकी भी लेंथ जो थी थोड़ी सी उन्होंने पीछे दो थी। विकेटें भी चटकाई जी, हैं इनकी। तो आई और वो तेज बॉलिंग कर रहा था 141 41 उसकी पेस आ रही थी। Yeah, so I think Misbah, let me ask you this: wouldn't other bowlers go to a bowler who's getting trashed around saying, "यार सुन तेरी लेंथ सही नहीं हो रही, थोड़ी पीछे कर"? कोई कम्युनिकेशन होता है या क्या वो है? Because सिराज बिल्कुल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि वो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे थे, नया बॉल कर रहे थे। Fair enough, और fair enough. नॉर्मली आपको जब पिच का अंदाज़ा होता है कि यार बहुत ही बैटिंग पिच है, तो अर्ली ऑन बॉलर्स कोशिश करते हैं कि टू टेक विकेट्स, एंड दैट्स व्हाई आपने देखा कि ही वाज जस्ट ब्रिंगिंग द बॉल एंड ट्राइंग टू स्विंग इट, कि यहाँ पे इनके मेन बैट्समैन हैं, इनको अगर हम आउट करेंगे तभी प्रेशर इन पे बिल्ड होगा। तो नेचुरली फिर जब आप चांस लेते हैं तो वहाँ पे रन्स भी जाते हैं। बाद में जब हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने बाद में विद 4 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल बॉलिंग की है, तो that makes a difference. That makes a difference. बुमराह की बात कर लेते हैं। बुमराह इज कम बैक आफ्टर हिज इंजरी। उन्होंने तो की थी नहीं, वो उनकी इंजरी के हवाले से बात कर रहे हैं। हाँ, इंजरी के। Because he's come back out of the injury and now he's वो ये स्टैट आपके लिए एक मौजूद है, इसके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं। There you have this. So since his ODI comeback इंजरी के बाद 7 मैचेस खेले, 14 विकेटें हासिल की हैं 7 मैचेस पे, an average of 19.21 and a very good economy of 4.71. या स्पेशल बॉलर, स्पेशल टैलेंट, और इंजरी काफ़ी लंबा बार रह के आया है, ये नहीं कि 1-2 महीने रह के आया, ऑलमोस्ट a year if I remember correctly. So that's a big deal. The minute he came back, I saw his first game, I was commentating, he was swinging both ways with control. Him and KL Rahul. Yeah. Him and KL Rahul. इंजरी के बाद दोनों इंजरी के बाद आए हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि इंजरी के बाद आए हैं, तो इसका You see, मतलब that's- है कि उनका जो मेडिकल स्टाफ है about to वो say that. स्ट्रॉन्ग है। उनका और जो वो NCA है, नेशनल कोचिंग जो भी है उनका, वो है बेंगलोर में। वहाँ पे प्रॉपर एक विंग है जो रीहैब के लिए है, इन प्लेस के लिए या फर्स्ट क्लास प्ले के लिए। दे गो देयर, दे गेट द रीहैब एंड प्रैक्टिस फैसिलिटीज आल्सो देयर। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन डू इट देयर, एंड आई थिंक उनका अब इंचार्ज इज लक्ष्मण, उससे पहले द्रविड़ था। You know all these big greats और उनके have- पास ना उन्होंने बैकअप्स रेडी किए हुए हैं। Yes. तो अगर इंजरी आ भी जाए तो वो बहुत जल्दी पैनिक नहीं करते हैं कि एक आधा मैच अगर हारे तो वो वापस से जो है, अगर रिकवर नहीं किया हुआ किसी ने जो परफॉर्मेंस देता वो आ रहा था, तो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम को ऑल्सो। वेरी ट्रू, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। आज जो इंडिया की हमें क्रिकेट नजर आ रही है उसमें उनके सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Which just takes me to a question. Look, I was there for 8-9 years, enjoyed every bit of it, on and off the field. Great country, great people, great food. But ये प्लान उन्होंने आई थिंक 2010 में शुरू कर दिया था। IPL 2007 या 8 में शुरू हुई है। 2010 ऑनवर्ड से आई वाज देयर, सो आई वाज रीडिंग के दे प्लानिंग इट के स्टेट ऑफ द आर्ट वो बनाएंगे, यू नो, नेशनल कोचिंग सेंटर एंड रीहैब and you know, and it's showing now. It is showing एक now. चीज मैं जरूर रिलेट करना चाहता हूँ, शुभमन गिल, Yeah. आप उनके रन्स देखें तो मेरा हाल 1200-1300 रन है उनके, ठीक है। वो पहले 2 मैचेस नहीं खेले, कोई मसला नहीं है। ईशान किशन है, अगर वो भी नहीं होंगे कोई और है। हमारा नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हुआ, हमें मतलब बहुत बड़ा धचका लगा है। हमें स्क्वाड अनाउंस करने में प्रॉब्लम हो गई थी कि अब स्क्वाड क्या भेजने हमने, हम तो लेट हो गया था। इसीलिए आई गेस ये ऐसे कॉल्स हैं कि हमें भी अगर कोई सिस्टम किसी का स्ट्रांग है तो हमें भी अपने सिस्टम को वहां से देख के जरूर चीजें सीखनी Don't चाहिए। let me start on this subject. Yeah, Man. It's just not cricket. It's everywhere. Every sport you look, where we are. Asian Games. में क्या एशियन किया गेम्स, हमने? उफ, यू नो वो मैं देख सौ रहा हूँ medals नहीं जीते करेंगे हैं। वसीम भाई तो कैसे चीजें सही Wasim, होंगी? this is very interesting that you bring this up because वो आज सब Pavilion चुके throughout the दिन मैसेजेस आते रहते हैं। Yeah, We have sure. so many questions जो पहले दिन से एशियन गेम्स के हवाले से आ रहे थे, एंड देन जब हम इधर ब्रॉडकास्ट शुरू कर चुके थे, मैचेस वर्ल्ड कप भी शुरू हो गए थे, तो एशियन गेम्स का पहले तो हमने वो क्या एक मैच हारा, हम सेमीफाइनल से बाहर हुए, फिर वो तीसरी पोजीशन वाला मैच था, हम वो भी हार गए। यू नो वी डिडंट गेट अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट, बट ये बात जो अभी I'm आपने not talking about just cricket. I'm talking about in general sport. वो एशियन गेम्स का बाकी भी जो रिकॉर्ड है Yeah. ना, वो इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग एंड I वेरी know. प्लीजिंग, राइट? सो वी हैव अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क कि हमारा You see, 6-8 months ago, I was abroad, maybe Dubai tha, so I was watching television.
वो इंडियन चैनल थे, तब से उन्होंने कैंपेन शुरू की थी। ऑल दी एथलीट, इंडियन ग्रेट एथलीट्स, वो पुराने थे जो सीनियर थे, उनको ला के मोटिवेशनल प्रोमोज बनाए उन्होंने, उसका शूटिंग का। सारी लीग्स शुरू हो गई हैं। One of the biggest campaigns that they have run, India, and full credit to them, was एक कैंपेन आई थी, इसमें कहते थे मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स। यानी कि आप कॉलेज में, स्कूल में हैं तो उसमें आपके स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर पूरे मार्क्स होते हैं। दैट एंटायर कैंपेन वाज कॉल्ड मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स। दैट्स हाउ यू गेट रिजल्ट्स, और एक पूरा प्लान आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पर तो हम घरों के अंदर जो है वो प्राइवेट स्कूल बनाने की इजाजत दे देते हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा लॉन होता है कि यानी कि बच्चे उसमें अगर ब्रेक टाइम पे, रिसेस टाइम पे उनका कोई स्पोर्ट्स का वो हो तो देयर इज नो स्कोप। There should be a law. There has to be a law. I think the education ministry, private schools, whatever schools, got to have some kind of ground, Sporting of facility. area or indoor arena or something. You can't open up a school in a Wasim koti. bhai, we did speak about all this. Did we? स्कूल्स में और कॉलेजेस में एक कंपल्शन होनी चाहिए सारे स्पोर्ट्स की। कंपल्शन ना भी हो ना, अगर बच्चों पे आप छोड़ दें, लेकिन उनको फैसिलिटी तो देना। अगर बच्चा कहे कि यार अच्छा मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, तो वो कहाँ खेले बैडमिंटन? इज देयर अ बैडमिंटन फैसिलिटी? डू यू हैव द बैडमिंटन इक्विपमेंट? वो स्क्वॉश खेलना चाहता है तो कहाँ पे खेले? वो अगर क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो कहाँ पे खेले? फुटबॉल खेलना चाहता है तो कहाँ पे खेले? यू अंडरस्टैंड, एक घर के अंदर जब आप स्कूल बनाते हैं, तो जो वसीम भाई की बात है वो बड़ी सही है कि जब आप प्राइवेट स्कूल को लाइसेंस देते हैं टू ऑपरेट, उनके ऊपर ये कानूनी तौर पर लाजिम कर देना चाहिए कि आपके इलाके में कोई ग्राउंड हो जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, और उधर 5 दिन जो भी आपके स्कूल डेज हैं वहां पर आप लेकर जाएंगे बच्चों को। यू रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग देम देयर, मेकिंग श्योर दैट। मैं इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि ये तो आप बात कर रहे हैं कि जहां पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है ही नहीं। इवन जिन स्कूलों में, कॉलेजों में ये फैसिलिटीज हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास घर में एग्जांपल है। उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अगर उनकी जो स्टडीज़ हैं स्पोर्ट्स की, बच्चा खेलने के लिए जा रहा है तो आपके जो उसकी जो क्लास से है ना, वो आपको नोटिस आ रहे हैं पेरेंट्स को, यानी उनको ये पता ही नहीं कि वो स्कूल के लिए खेल रहा है या इस टाइम वो वंडरफुल। और उस पे बजाय उसको असिस्ट करने के, उसके बाद कि अगर वो उसने 4 हफ्ते खेला है, कोई वो टूर्नामेंट खेल रहा है, बाद में उसको उन सब्जेक्ट्स पे असिस्ट करने के बजाय आपको वार्निंग नोटिसेस आते हैं। सो इट्स समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड। Do we have time? We know. We see. I want to have this discussion, and we can have this discussion in Ask the Pavilion वाले segment में. With that, we're going to take a break on the Pavilion, but when we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back from the break. You're watching the Pavilion. This is A Sports, Sen Sports and the AirWise app और हमारी ICC वर्ल्ड कप की कवरेज जारी है। आप सबको पता है कि न्यू दिल्ली में इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना मैच जीता है। राइट जी, द वे फॉरवर्ड। मोइन, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। सवाल आपसे पूछना था मिसबाह, द वे फॉरवर्ड फॉर अफगानिस्तान। वो बिल्कुल तैयार नहीं मैं बिल्कुल तैयार बैठा था, मैं बिल्कुल तैयार बैठा, मैं क्या कोई चेतावनी करेगा जी, मोइन बिल्कुल तैयार नहीं थी। आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए, लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर देम, स्पेशली बैटिंग में मिडिल ऑर्डर रन्स किए, बट जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि आप एज ए टीम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपने जो अपनी एक दूसरे की परफॉर्मेंस को बैक करना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनकमिंग गेम्स पॉजिटिव रहना है और कोशिश करनी है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर रन्स करता है तो उसको फिर नीचे वाले बैट्समैन उसके साथ कंप्लीमेंट करें, एंड देन यू आर बॉलिंग, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। बॉलिंग ने भी आज जिस तरीके से बैटिंग पेश थी, थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, बट लुकिंग फॉरवर्ड 1-2 अपसेट्स कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम कर सकती है। राइट दोस्तों, अब से कुछ लम्हों बाद हैशटैग आस्क द पवेलियन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। हैशटैग आस्क द पवेलियन, आपके सवालात, आपके ओपिनियंस, आपकी बातें हम इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगे अपने लेजेंड्स के साथ। लेजेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, वो आज मैं और मिसबा ही थे खाली लंच में, आप लोग तो चले गए थे, आपने मिस किया आलू गोश्त और वो सारे का सारा। बट यू नो व्हाट, ये ब्रेक पे जो है ना, मैं पोस्ट करता हूँ जो खाना मैंने और मिसबा ने आज निपटाया है दोपहर को लंच पे, उसका वीडियो जो है आई जस्ट पुट इट आउट ऑन सोशल्स ड्यूरिंग दिस ब्रेक। आप देखते रहिए द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द AirWise app. Ten Sports and the AirWise app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं A Sports, Ten Sports and the AirWise app. And it's time in the Pavilion for
your questions, your comments and your words of wisdom with hashtag Ask the Pavilion. ये hashtag एक दफा थे, फिर आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं hashtag Ask the Pavilion. आप भी अपने सवालात जो हैं वो हम तक भेज सकते हैं और इस पे हम अपने जो पैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे. I've got with me Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and the great Wasim Akram. पहला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये है जनाब मोहम्मद कासिम पास्ता का. I hope that's पास्ता लिखा हुआ है भाई, सो प्लीज़ कोई नाराज़ ना होइएगा. मोहम्मद कासिम पास्ता, और आप पूछ रहे हैं which kind of pitch we should expect for Pakistan versus India match, considering last chase India might not be happy to have a flat batting track but also won't be interested in bowling pitch. Is it right to expect a low quality pitch to support spinners? Mohammad Qasim Pasta, it's to you guys. आई डोंट थिंक कि वो टर्न एंड ट्रैक बनाएंगे. उनकी टीम इतनी ज़बरदस्त है, आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए. आप लोगों ने उनकी फ्लैट डेक पे अगेंस्ट अफगानिस्तान, आई कैन अंडरस्टैंड वो इनएक्सपीरियंस साइड है अफगानिस्तान, और इंडिया इज़ लुकिंग रियली गुड. लाइक आई सेड बिफोर, ऑल बेसिस कवर, 3 spinners in the squad, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आज डाला शार्दुल ठाकुर, और आई थिंक फ्लैट विकेट पे वो फेवरेट होंगे. अगर वो कुछ टर्निंग बनती है तो उसमें भी दूसरी टीम भी आ जाती है ना. वंस द विकेट इज ट्रू एंड फ्लैटर, द बेटर टीम प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द टाइम विल विन. क्यूरेटर तो आईसीसी के नहीं है. यस दे आर. Yeah, they are. No, they are ICC. Seriously, they are ICC. मैं कौन सा non-seriously कह रहा था कि नहीं. No, I know. Yeah, लेकिन अगर वसीम ने जो बात की, the point is it. कलमंद क्यूरेटर है वैसे आईसीसी के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है. Elaborate please, Misbah. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तीर जा रही थी. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने पिच देखी और आज की पिच तो डिफरेंट पिचेस हैं. अगर एक स्टैंडर्ड की पिच है तो मेरे ख्याल में जैसे आज की पिच है वनडे के लिए, वैसी पिचेस होनी चाहिए. अगर स्पिनिंग ट्रैक आ भी जाता है इन पाकिस्तान इंडिया मैच, व्हाट हैपेंस? बिकॉज हमारे स्पिन डिपार्टमेंट पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे सवालिया निशान लगा चुके हैं. स्पिनिंग अगर आ भी गया तो हमारे स्पिनर थोड़ी तेज बॉलिंग करानी शुरू कर देंगे. वो भी स्पिन ही करेंगे. हमारे भी अच्छे बॉलर हैं और अच्छी फॉर्म में भी. मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई पिच होगी जैसे मिसबा ने कहा. बिल्कुल स्पोर्टिंग ऑफ कोर्स अगर टर्निंग बना लेते हैं तो यू नेवर नो. अगर पाकिस्तान के 2 स्पिनर जो हमारे नवाज और शादाब हैं, वो दोनों अगर अच्छे ओवर्स कर जाएंगे तो इंडिया को आउट नहीं कर सकते क्या? वो बहुत अच्छी बॉलिंग अगर इस तरह इस इंटेंशन के साथ अंडर एस्टिमेट करके ग्राउंडसमैन अपने तौर पे अगर इस तरह की पिच दें या किसी की डायरेक्शन पे इस तरह की पिच, तो मेरा ख्याल है टूर्नामेंट के साथ ज्यादती होगी. किसकी डायरेक्शन पे दे सकते हैं ऐसी पिच? ये बात ये है कि इंडिया के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है. एक जो भी ग्राउंडमैन होंगे इस वक्त आईसीसी ने कहीं से इम्पोर्ट नहीं किए होंगे, इंडिया के ही ग्राउंडमैन होंगे, लोकल ग्राउंडमैन होंगे. नेचुरली बीइंग एन इंडियन एक सिंपैथी तो होती है ना किसी के अंदर. मैं उस लिहाज से बात करूं. बट मिसबा की बात बिल्कुल ठीक है कि फेयर पिच बनानी चाहिए. जो बेटर टीम होगी वो बनानी चाहिए. दैट्स द क्वेश्चन. बनानी चाहिए तो फेयर पिच बेहतरीन बनाएंगे क्या, ये देखी जाएगी. अगला सवाल है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बिकॉज आज शोएब मलिक आपने नेट रन रेट के ऊपर बात की थी. जब मैं पॉइंट टेबल दिखा रहा था आपने कहा कि नेट रन रेट जो है वो बहुत काउंट करेगा. ये सवाल जो आया है जनाब, ये आया है फ्रॉम दी ग्रीन ब्रिगेड. ग्रीन ब्रिगेड जो है वो आपसे ये पूछ रही है सवाल, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट मी रीड दिस आउट. द लास्ट बॉल हिट बाय पाकिस्तान वाज अ बाउंड्री, जो श्रीलंका वाला मैच हुआ है, राइट? बट आवर बैटर्स रैन द सिंगल फर्स्ट बिफोर द बॉल रीच्ड द बाउंड्री लाइन. Hence it was counted as 1 run. Currently our run rate is plus 0.92, but if it was counted as 4 then it would be plus 0.956. 92 है, 956 हो सकता था. Were the players not aware of this? Because ये रूल है कि अगर आपने सिंगल पहले ले लिया है या कुछ नहीं, they were not aware of this rule. और पहले मेरा ख्याल है जो रूल्स थे उसमें वो बाउंड्री ही काउंट होती. लेकिन अब जो नए रूल्स आए हैं उसमें उन्होंने क्योंकि रन पहले कंप्लीट कर लिया था बिफोर बॉल हिट्स द बाउंड्री, राइट, तो वो एक ही रन काउंट हुआ, जिसकी वजह से जो नेट रन रेट है जो दिख रहा है वो सही नहीं है. ये अगर जनरली बाउंड्री क्रॉस हो रही है, इट शुड बी गिवन 4 runs. I know, but sir, I have a question because you guys are really talking. I mean, very important thing. But ये बहुत ज़बरदस्त question है. यह सईद ज़ोहेब साहब से question है from the host himself as you, the Fakhar-e-Pakistan. Why did you stop singing? Please sing something in the show too.
heart eyes emoji, heart eye emoji, crying emoji. मुझे आज तक जी आपका बहुत बहुत नंबर याद है शुक्रिया जी जी बिल्कुल बगड़ा मगर हम क्रिकेट पे फोकस करें तो ना, ज्यादा गा बेहतर के है। सुनाना होगा। गा के नहीं तो सेमी अगर तो पाकिस्तान जीतता है 14 को तो बॉस फिर तो गाना बजाना होता है यहाँ पे I doubt. फिर I will let you allow ढाई that. घंटे का प्रोग्राम सिर्फ गाने से ही हाँ, शुरू बिल्कुल होगा, ऐसे ही गाने होगा। पे खत्म होगा। यार वैसे और एक और क्वेश्चन आपने है एक- सैफ जंजुआ की तरफ से आस्क द पवेलियन हैशटैग मिसबा अंकल एंड मोइन अंकल प्लीज प्रेडिक्ट द इंडिया पाकिस्तान मैच ऑन 14th of October. ओए होए होए अंकल मिसबा अंकल दोनों में से Then कोई ना win कोई तो जीतेगा। दोनों में से कोई ये प्रेडिक्शन है ये बहुत यही आपका भी जवाब है ना? पिच पे डिपेंड करता है टॉस पे डिपेंड करता है उस दिन बात करेंगे ना इसके हाँ, ऊपर बिल्कुल बट बात थैंक यू मिसबा अंकल मोइन अंकल जी, पूछिए। शकीब नकवी साहब का सवाल है शकीब नकवी ने सवाल किया है और गौर से सुनिएगा सवाल वसीम अकरम आपसे है सवाल कर रहे हैं शकीब नकवी साहब हु वाज द फिटेस्ट प्लेयर Saeed who was the fittest player during your period when you played cricket I have told that Saeed Anwar was once declared the fittest Yeah, in your he was. squad Let me get the record straight. okay let's get the After about 25 odd years. 25 साल बाद ये बहुत बड़ी खास बात हो रही है 25 साल बाद रिकॉर्ड सेट होने लगा है सर Very dear friend of mine, आज मेरा मोइन का मिसबा का भी उनका तो सीनियर था बट हमारा तो दोस्त था टॉप प्लेयर Saeed Anwar. मल्टी टैलेंटेड Saeed Anwar. ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर या सईद अनवर बट ही वाज द मोस्ट अनफिट क्रिकेटर इन पाकिस्तान टीम ग्रेट बैटर और वो क्या करता था वो डॉक्टर जो हमारे टेस्ट लेते थे उनसे दोस्ती कर लेता था ना उसको कभी ट्रेनिंग करते देखा और फिट था यू नो ही वाज हैड अ प्रॉपर सिक्स पैक एंड ठीक ठाक डंड वो नेचुरल थे उसके और क्रिकेट बोर्ड की बुक्स में हमेशा फिटनेस मिसबा ने याद कराया है फील्डिंग में जब 48वें ओवर याद तो नहीं कराया है 48वें या 45वें वो और यूसुफ दोनों अपने आप को आई हैव टू स्टैंड अप एंड शो टीम यस 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 वो थके होते सन वो थके होते थे तो वो खड़े होते थे ऐसे कर कर अपने आप को मुक्के मारे होते थे किसी तरह खुल जाए किसी तरह मेरे हैमस्ट्रिंग ते मेरे पट खुल जाए तो वो एने फिट सन सही नाराज ना हुई बट दिस हैज ये स्ट्रेट होना बड़ा जरूरी था सो ये हाउ वाज ही डिक्लेयर्ड द फिटेस्ट वो ये चूंकि डॉक्टरों से डॉक्टर से दोस्ती कर रहा था वो बर्पीज भी केला कर रहा था दंड भी केला एक उसमें लगाता था कोई सामने गवाह ना कभी नहीं किया कोई उसने। गवाह नहीं होता नहीं ये तो सही वो नहीं वो डॉक्टर लिख के देते थे कि जी इज द फिटेस्ट पर्सन एंड आई यूज्ड टू गेट सो अनॉयड यार ये तो कमाल ही हो गया काश सईद अनवर मेरे जिम पार्टनर होते ऐसे जिम पार्टनरों की मुझे जरूरत है जो कोई देख ही ना सके कि हमने क्या किया है जिम में और क्या नहीं किया कोई गवाही नहीं होनी चाहिए बुनियादी तौर पे आई लव इट आई दैट्स सही में बड़ी था मेरे साथ ड्रामे Inspiring. किया इसका सेंस ऑफ ह्यूमर लाइक आई सेड वेरी विटी पंजाबी भी आती थोड़ी बहुत फिर कराची से थे फिर लाहौर मूव हो गए तो जब जवान थे हम ये आई वाज 22 में भी और 23 maybe 24 राइट so, ये नीचे से ना तब तो फोन नहीं थे होते ये वाले नीचे से वो जो होटल में हम रुके होते थे इन हाउस फोन से कॉल करता था लड़की की आवाज में क्या आई एम हियर टू सी यू एंड आई वी यूज्ड टू गेट एक्साइटेड यंग गाइस वो यार कोई मिलने आ रहा ऑटोग्राफ देंगे कप लगाएंगे वो नीचे तैयार व्यार होके निकर विकर टी शर्ट पहन के जाते थे और ढूंढते रहते थे अगले दिन 10 ही है तो मैं था बड़ा गुस्सा था दोस्तों hello he was incredible he really was when you mean he could actually make a voice that would खातून की आवाज में वो आपको कॉल कर देते इतनी अच्छी और उनकी हम आवाज होती जैसे थी। लॉरियों को यू नो बेवकूफ बना लेता था यार वेल डन सही दे ये बहुत बड़े बड़े किस्से हैं बट दोस किस्सास आर कांट बी डिस्कस्ड क्यों नहीं यार आप तो बता सकते हैं मैंने अगला पवेलियन की सवाल यही तो कमाल है हम यहाँ पर तकरीबन सब नाम कुछ ही ना बता ले, देंगे। पवेलियन बंद करवाना अगला सवाल पूछे अगले सवाल पे आ जाते हैं राइट जनाब ब्रिंग इट ऑन गिवन अंडरस्कोर इन इनका ट्विटर हैंडल है ब्रिंग इट ऑन की तरफ से सवाल है ब्रिंग इट ऑन ONN question to all you talked about Rohit Sharma's 7 World Cup centuries should we not consider how many are in the SENA countries in Southeastern Asian countries and rest of the world because batting pitches completely change the dynamics of the stat यार उसने 500 तो इंग्लैंड उन्होंने 2019 में मेरा हाल 400-500 बैट दिए थे 500 किए थे इंग्लैंड so I hope आपको bring it on आपको उसका और ऑस्ट्रेलिया में एक किया था 2015 में right so it's नहीं ब्रिंग इट ऑन इनका नाम है ना जी, जी, जी। की ना है वो नाम लोग ऐसे ही रखते हैं I know. Funny, I'm just kidding. अच्छा नहीं, but maybe it's going a bit deep into it.
बट जो इंग्लैंड में 500 किए थे, आई डोंट नो किन टीम्स के खिलाफ किए थे, वो हमारे पास भी स्टैट नहीं है, बट अगेन इट्स अ बिग अचीवमेंट हैविंग 500s इन। और यस, डायनामिक्स बदल गए हैं, आई एग्री विद यू, डायनामिक्स बदले इसलिए, माइंडसेट बदल गया T20 से। अब जब मैंने वनडे शुरू किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट मिड 80s, लेट 80s, अर्ली 90s में 225 वाज कंसिडर्ड अ विनिंग टोटल। 100 तो वसीम भाई मुझे याद है जो उन्होंने मैनचेस्टर में किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, 100 कुछ किया था 2019 के वर्ल्ड कप में, जो इंडिया पाकिस्तान में। दूसरा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने किया था। तो आई गेस ये दो टीम्स बहुत हैं। आई थिंक सो। आई थिंक ओके, आई अंडरस्टैंड कि वो किस तरह उसको फ्रेम करना चाह रहे थे, बट आई थिंक दैट डजंट अप्लाई हियर बिकॉज़ रोहित हैज प्रूवन हिमसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन अराउंड द वर्ल्ड। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया है, एंड दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम मनोज Duj, okay, I don't know how to pronounce it, but Manoj, आपका सवाल है, maybe you recognize it from this. Manoj, thank you very much. Manoj का सवाल ये है, आज से Pavilion, big fan from India, have watched it right from the very first edition of the Pavilion, miss Agha Bata dearly. My question for all the panelists, I want to understand, can cricketing data be absolutely accurate? Are we to take data that is given to us or presented to us on its face value, or are there more dynamics at play within the data sets? Okay, it's a complicated question, but if I'm not mistaken, I think what he's trying to ask here is, and I'll bring it to you, Misbah, कि वो कह रहे हैं कि डेटा सेट्स उसको फेस वैल्यू पे नहीं वो, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि अचानक कि जी इस बैट्समैन ने इतनी गेंदों में ये किया, इनका स्ट्राइक रेट ये था, यूँ था, वो था, तो उसमें ये भी तो हो सकता है कि वो जब बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त फील्डर अंदर थे, जिस तरह आज आपने पॉइंट आउट किया कि वो बैटिंग जब कर रहे थे या वो बॉलिंग जब कर रहे थे, तो डज दैट मीन दैट द डेटा सेट दैट इज प्रेजेंटेड टू अस इट्स रियली एक्यूरेट, इट्स 100% एयर टाइट, और इज इट टू फ्लूइड? देखिए, थोड़ा सा एक आपको रफली आइडिया देता है, बट एक्चुअली जो आपको चीज़ें पता चलती हैं वो आप थोड़ा सा देखते हैं कि सर्कमस्टांसेस क्या थे परफॉर्मेंस के, जो बॉलिंग की है कैसी पिच थी, किस किस्म का बैट्समैन था, सिचुएशन क्या थी। बेस्ट जो आपको एक आइडिया आता है वो उसी से आता है। जनरली मेरे पास अगर कोई 15 या 20 मैचों का डाटा आया है तो आई हैव नो आइडिया कि वो किस किस्म का डाटा है, किस किस्म की पिचेस थी, कैसी अपोजिशन थी, राइट, सिचुएशन क्या थी। छोटी सी एग्जांपल है, ज़्यादा दूर वाली नहीं है। उस दिन इंडिया के जल्दी आउट हो गए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, विराट टुक लॉट्स ऑफ बॉल्स जब वो आया बैटिंग करने के लिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी उस सिचुएशन की। बिल्कुल। आज विराट आया, उसने 56 बॉलों में 55 रन्स बनाए। तो आई गेस डेटा इट डज हेल्प, लेकिन मैं इसको परसेंटेज पे अगर लेके जाऊं तो आप इसको ये कह सकते हैं 70-30। बट ये 70-30, क्योंकि मैं ये कभी कभार सोचता हूँ, खुद भी ये सोचता हूँ कि आपने जैसे कहा ना कि पिच का आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता ये बॉलर है, इसका ये डेटा है, इस ये दिन में कितनी बॉलिंग की है, अंडर लाइट्स कितनी बॉलिंग की है, यू नो किस उस पे की। इस गेम की ब्यूटी है, राइट, इतने क्यूरियस होते हैं लोग, इवन द क्रिकेटर्स, राइट, हमें खुद नहीं पता होता, एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू, यू नो। और यही वजह इतनी ज़्यादा फॉलोइंग होती है और इतने ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, जो डिफरेंट जो हमारे टॉप स्टार्स हैं, यू नो, कमेंट करते रहते हैं ऑन डेटा बेस। अच्छा, मैं एक चीज़, बड़ी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जब बड़ा सैंपल साइज आता है तो मोस्टली फिर हम कहते हैं कि डेटा जो है वो झूठ नहीं बोलता, कि मतलब 100 मैच आ गए हैं किसी के और उसके बाद उसका एक स्ट्राइक रेट है, एवरेज है, तो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है। फिर उसमें डिफरेंट पिचेस भी आ गई, डिफरेंट अपोजिशंस भी आ गए, डिफरेंट बॉलर्स भी आ गए, बट स्टिल उसमें क्या होता है, आपने जब पर्टिकुलरली एक डेटा लेना होता है, जैसे फर्ज करें मैं बड़ा अच्छा हूँ स्पिन के अगेंस्ट, जनरली मेरा कैरियर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि लास्ट 10 इनिंग्स जब आपकी निकलती हैं तो हो सकता है उस पर्टिकुलर बॉलर के अगेंस्ट, लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट मैं फंसा हुआ हूँ, मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। तो ये जो डेटा को एनालाइज करना और उसको अपनी फेवर में यूज करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पूरी That's why it's called data sciences, right? There is a whole data science aspect. ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। You've been associated with different teams in the PSL, even in IPL, right? So आपके पास भी ये सारा डेटा आता होगा. Yes. Would every coach and team manager interpret the same data differently?
वही डेटा आपको एक प्लेयर का आपको मिल रहा है, एक प्लेयर आपको मिल रहा है, आप उसको जो इंटरप्रेट करेंगे क्या वो अलग नहीं, तरीके से यूजली हो सकता है? डेटा टीम मीटिंग में डिस्कस होता है, थोड़ा बहुत मोटा जो होता है कि यार ये बैट्समैन को यहाँ बॉलिंग करनी है, इसकी वीकनेस यहाँ पे है, इसकी स्ट्रेंथ्स यहाँ पे है, ये इसकी गो टू शॉट है, यू नो डिपेंड्स ऑन द बॉलर। ये इस तरह का डेटा शेयर होता है टीम मीटिंग में। इंडिविजुअल अगर किसी ने जाके देखना है तो जो आपका स्टैट का बंदा है इज़ अवेलेबल 24/7, यू कैन गो एंड सी योर ओन बैटिंग। इफ़ यू वांट टू सी बॉलर जो आपने देखा नहीं है ऑपोजिशन का, आप वो देख सकते हैं। यू नो ऑल दीज थिंग्स मैटर, परसेंटेज एंड एवरीथिंग होता है, बट मोटा होता है, इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं हम लीगों में। वसीम भाई, अब तो डायमेंशन इसमें बहुत ज़्यादा ऐड भी होती जा रही हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी कंपनीज बन गई हैं, लोगों के पास इतना पर्टिकुलर डेटा होता है कि अच्छा जी रीसेंट मैचेस कंडीशंस क्या थी, इस हद तक जाते हैं। बट जब मैच आप खेलने जाते हैं तो वो वसीम भाई की बात बिल्कुल ठीक है, देन यू डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। आप एक चीज़ आपने देख ली और वहाँ पे जो गट फीलिंग है या आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक ये बड़ा ज़रूरी है कि हाँ यार एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं 75 चीज़ें याद करके सारी सोच रहा हूँ तो एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगी? Very true. I can't wait to see AI get involved into entire data sets of cricket. Have artificial intelligence, all that data sciences is going to get really more and more interesting as we progress in this game. With that, we're going to take another break right here on the Pavilion. But when we come back, Ask the Pavilion and more answers. वेलकम बैक टू द पवेलियन। आज द पवेलियन क्या सवालात जो है उसका सिलसिला जारी है। एक और सवाल आया है बड़ा ज़बरदस्त और मैं इसके ऊपर जल्दी से आप लोगों का आंसर दे देता हूँ। लारा इनका नाम है और हैंडल है डॉक बेग MD। डॉक बेग MD पूछ रहे हैं आज द पवेलियन, डू यू थिंक द ICC शुड रिकंसिडर the 5-player encircle rule between 10th to 40th over? This has led to ODI cricket hugely tilted in the batsman's favor. Wasim. यार क्रिकेट तो बड़े अरसे से बैट्समैन की फेवर में जा रही है। एवरी लॉ जो बनता है वो बैट्समैन की फेवर में होता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई मीन T20 फॉर्मेट इज बॉलर्स गेट पेड टू गेट हैमर्ड एंड वनडे क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाना था। Nice way of putting it. Bowlers get paid to get hammered. That's the best way I've ever heard anybody put that. Bowlers get paid to get hammered. Yeah. और वी वर टॉकिंग अबाउट वनडे क्रिकेट को उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बनाना था। दैट्स व्हाई आई थिंक दे ट्राइड। कितना अरसा हो गया इस 5th फील्डर को इनसाइड द सर्कल? 2 years, over 2 years, तकरीबन। Again, in a long run, I think you know it's just my opinion, can be wrong. कि one-day cricket कुछ करना पड़ेगा इनको drastically, especially bilateral series. ये बड़ा मसला है। Nobody watches. Actually, वसीम भाई T20 क्रिकेट के पॉपुलर होने के बाद वनडे क्रिकेट एक बोरिंग बन गया था, स्पेशली इन बिटवीन 10 to 40th या 50। वो एंड पे शुरू का आपने पावर प्ले देखा, टीम्स ने एक्सेलरेट किया, फिर वो वेट किया लास्ट 10 ओवर्स में जाके आपने। So it's more for commercial appeal, more to getting people into what? खाना ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है। जवाब लंबा। खबर दूं मैं, डिंक चिक्का शो खत्म हो रहा है। Tomorrow's match, ये रहा मैच आपके लिए लेकर आएंगे हम सुबह। बहुत खुशी है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लखनऊ से दोस्तों बहुत बड़ा मुकाबला है ये, बहुत बड़ा मुकाबला है ये, क्योंकि मैच है वसीम अकरम के इन-लॉज का साउथ अफ्रीका के साथ। हम सब जो है इसको देखेंगे कल आपकी खिदमत में 12 बजे हाजिर होंगे। प्रेडिक्शन लिख लें वसीम भाई की ऑस्ट्रेलिया। प्रेडिक्शन हमें पता है कि वसीम भाई की तरफ से कल सुबह लेंगे प्रेडिक्शन 12 बजे प्री मैच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और शोएब थैंक यू वेरी मच, बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि खत्म हो गया आज आपका कमिटमेंट भी है ना, मोइन का कमिटमेंट जाना है और मोइन भाई भी जा रहे हैं, मोइन भाई को अपनी एकेडमी में पहुंचना है। मिसबा चल गंजर खाना खाइए। वसीम भाई थैंक यू सो मच फॉर अनदर टाइम। थैंक यू फखर। ढिंका चिक्का गुड नाइट।